know the writings of notice, but you don't know the how is it complement. So how you will be do? So who you are the student of 9th standard, you are the student of 10th standard, you know writing of notice. But आप क्या करते हो? खाली बॉक्स में लिख देते हो, लेकिन some points are there. You should be remember this one in your write in your notebook and remember. First one is there. Notice writing first is name and designation of issuing authority. When you have to write notice, तो आप क्या लिखते हो? और नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी. आप जिसके बारे में लिखना चाहते हो, यू हैव टू राइट देयर इन द बॉक्स. First you have to do one box is there. Each and everything in the notice you have to write in box. Okay. Second number is there. Use capital letters for name of issuing authority. When you have to write the name of the authority, use capital letter. You know the when the any name letter essay whatever you have to write, that time you have to start with capital letter. In there also, जो authority name is there, capital must be there. Okay. Third number is there date of issue. Which day you have to start? You want to write the box in the box, but you have to write the date also. Third number is there the purpose of the notice should be made clear. ये होना है, वो होगा, ऐसा नहीं. Should be clear in the box. At first you have to write the notice, then name of the authority with capital letter. Then what is the subject? Should be clear, must be clear. Okay, should be clear. So then number 4, content should answer questions like what, where, for whom. You have to mention there in when this competition will be there. You should be mentioned in where, which time. Okay, which time. Suppose you have to organize a debate competition. What is the venue? When, where, मतलब venue मतलब कहाँ पर होगा. What is the time? You should be mentioned in the notice. Otherwise, others will be not understand that one. So you have to write the notice with date, then where, when. Okay. Suppose debate competition के आपने organizer है, तो आप सबसे पहले लिखोगे. Suppose it will be held on assembly hall. To mention there assembly hall, 4th floor. You should be mentioned there. Which date? You should be mentioned there. When, time, 10 a.m. to 12 a.m. 12 noon. So you have to mention there. In the school of Radiant School. Should be there. After that, content should answer questions like what, where, what. Details should be given in order of importance. So you have to write what is the importance of the quiz. Where, when you have to mention, and quiz. Where, but debate. So you have to write the debate. Why you organize the debate competition? It is very necessary for the group of students, 8, 9, 10. That you have to mention there also. So how many students, which standard students are participate there? You have to write 7th onwards, but 8th onwards, 8 to 12th. Students will be participate. You can participate in the debate competition. So you should be mentioned there which standard. So suppose from other school, to which school, in where you have to go other school for debate competition, how many students, where it will be held. So you have to mention. Okay. Then next idea, details should be given in order. Clearly mention if there is an event or a cause. अगर आपने डिबेट कंपटीशन लिख रहे हो तो उसके लिए नोटिस आपको देना है. सपोज आपकी नोटिस आपने नोटिस बोर्ड में लगाना है. नोटिस बोर्ड में आपको क्या लिखना है? आपका एक बुक हो गया तो आपको कारण लिखना है, बुक हो गया, दैट्स वाई. ये आपकी कॉज होता है. फिर आपने इवेंट, अगर डिबेट का लिखा तो इवेंट में आपको डिबेट का नाम तो जरूर लिखना है. टॉपिक लिखना है, कौन सी टॉपिक के ऊपर है. सपोज साइंस, ब्लेज और कार्स, इसके ऊपर डिबेट है तो दे विल बी हु विल बी पार्टिसिपेट इन द पोर्शन एंड अगेंस्ट. तो आप इसमें लिख सकते हो किसने अगेंस्ट में और किसमें फॉर में. तो आप इसमें पार्टिसिपेट किसको देना है, कब तक देना है, ये जो क्यूरियोसिटी होता है स्टूडेंट्स का अंदर नोटिस बोर्ड आने में, तो उसके बाद ये आपको क्लियर करना है. ओके. फिर क्लियरली मेंशन इन क्लियर इन द लैंग्वेज शुड बी इम्पर्सनल एंड अवॉइड. उसमें अपना भाषा नहीं लिखना है. अपना, नोटिस में आपका सामान खो गया, दैट इज अनदर थिंग. दैट टाइम यू हैव टू राइट देयर. ये नोटिस बोर्ड में हमको हमारा सामान खो गया. लेकिन जब आपने डिबेट में अदर्स कुछ कर रहे हो उस टाइम डोंट ट्राई टू राइट इन पर्सनल.
आई एम ऑर्गेनाइज कभी नहीं लिखना, ठीक है, आई एम ऑर्गेनाइज नहीं लिखना, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर नो यू आर द ऑर्गेनाइजर, बट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल एज ऑर्गेनाइज्ड, ओके, मैनेजमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड, ओके, लाइक दैट. तो यूजिंग फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकेंड पर्सन यू कभी यूज नहीं करना, अवॉइड करना. इट शुड बी रिटन इन 50 वर्ड्स एंड प्लेस्ड इन ए बॉक्स. मैं पहले बोली हूँ नोटिस मतलब बॉक्स, तो आप इसमें क्या करोगे, बॉक्स में लिखोगे और ज़्यादा डिटेल्स में लिखना नहीं चाहिए. कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी देयर, हैं, बाप कौन सी क्लास, कौन सी बॉय, कौन सी हेड, हेड बॉय, हेड का वॉट एवर देयर, तो वो ऑर्गेनाइजर उसके साथ कॉन्टैक्ट करने दें. इसलिए 50 वर्ड से ज़्यादा नोटिस में नहीं होना चाहिए. देन द नोटिस इज रिटन इन फ्यूचर टेंस. ये होने वाला है ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम आवर स्कूल, इट विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट मंथ बट नेक्स्ट 30, तो फ्यूचर टेंस में, ओके. तो ये जो है ये आपको क्या करना है, ये आपको करना है. और अथॉरिटी है, सपोज यू हैव टू राइट ए नोटिस, देन आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करनी है. और इसमें जो यूजिंग अथॉरिटी, सपोज आपकी हमारे स्कूल से एक डिबेट कंपटीशन है बा एक प्रोग्राम तैयारी हो रहा है, तो हमारी जो कंपटीशन, तो आपको उसमें मेंशन करना है कब है, डेट ऑफ इशू, आपने कब लिख रहे हो उसका डेट ज़रूरी है. सपोज आज आपने नोटिस बोर्ड में लगाओगे, यू आर द हेड, तो नोटिस बोर्ड में आज जब लगा रहे हो तो उसकी डेट नोटिस बोर्ड में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बाद में बच्चे ना बोल सके जी आपने तो नोटिस बोर्ड में लिखा था, हम लोग देखा नहीं था. लेकिन अगर आपने लिखो, सपोज टुडे इज़ 18, तो आप लिख सकते हो 18/9 आई ऑलरेडी राइट इन द नोटिस बोर्ड. तो आप इसको आपके पास रखने के लिए, आपका प्रूफ रखने के लिए, और आपने नोटिस कब बनाया और उसके बाद आपने कितने टाइम दिया इन नोटिस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उसका तैयारी करने था. सपोज डिबेट कंपटीशन ऑन 30th, तो आपने आज दिया, 18 को दिया, तो 18 को अगर आप दोगे तो आपके पास 12 दिन बच्चे के पास टाइम होता है फॉर प्रिपरेशन. तो इसीलिए डेट मेंशन करना ज़रूरी है. बाद में लास्ट मोमेंट में आके दो बच्चे आपको बोला, यू आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ द डिबेट कंपटीशन, दो बच्चे ने बोला जी सर हमको, भैया हमको तो पता नहीं था, व्हाट यू आर डूइंग. दैट टाइम यू से नो, मैंने तो नोटिस बोर्ड में आज से 12-13 दिन पहले दिया था. तो ये आपके पास सबसे पहले नोटिस बोर्ड में आपको डेट लिखना ज़रूरी है. और जो कुछ भी करना है बॉक्स में करना है, जो कुछ भी करना है आपको बॉक्स में करना है. तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेगा, जे हम जो नोटिस बोर्ड में नोटिस चिपका रहे हैं तो आपको समझ में आए, जो पढ़ रहा है उसको भी अंडरस्टैंडिंग, उसको भी समझ में होना चाहिए. इसीलिए नोटिस बोर्ड में जो आप लिख रहे हो छोटा हो, लेकिन बोलते हैं ना स्वीट एंड गुड, तो सुंदर हो, छोटा हो और एकदम सिंपल सा हो, ज़्यादा हचपच मत करना उसको. तो आपने ज़्यादा 150 वर्ड्स का तो होता नहीं है, तो आपने डिटेल्स लिखा, हम लोग इतने बजे आएंगे, हमारा इतने बजे, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. तो मैनेजमेंट एज ऑर्गेनाइज्ड ए डिबेट कंपटीशन इन आवर स्कूल, सो वी हैव टू, यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव योर नेम. ठीक है, तो नोटिस में लिखने के बाद आपने नोटिस में क्या, किसके लिए, डिबेट कंपटीशन, वो कैपिटल लेटर में लिखना है, इन द बैक ये में इन्वर्टेड कॉमा. तो क्या होगा, वो अंडरलाइन हो जाएगा, जो डिबेट कंपटीशन इज देयर, व्हिच डेट, when, where, तो which date, 30th, where, in Radiant schools, when, timing 10 to 12, but 9 to 11, तो 9 AM to 11 AM. बट दूसरे स्कूल में जा रहे हो, दूसरे स्कूल की नोटिस, आपने हेड बॉय है तो आपको स्कूल से बताया, तो आपको आप लिख सकते हो, वी आर गेटिंग द मैसेज दैट स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा करके. तो आपके पर्टिकुलर आई यू नहीं लिखना, आप अपना नाम नहीं लिखोगे, आई एम ऑर्गेनाइज्ड कभी नहीं लिखना गलती से भी, यू आर ऑर्गेनाइजर नहीं लिखना. मैनेजमेंट का नाम देना, आपकी स्पोर्ट्स टीचर का ए करना, स्पोर्ट्स टीचर बोले है, नाम नहीं देना.
मैनेजमेंट में भी, हमारे मैनेजमेंट में बहुत से है, 3 ट्रस्टी है, जो भी हो, व्हाट एवर दैट, आपको खाली मैनेजमेंट लिख देना है। मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड, मैनेजमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट में जो भी बोला आपको उसका कोई फ़र्क नहीं आपके पास पड़ेगा। आप उसको क्या करोगे, आप उसको ऐसे करके बोल सकते हो, ठीक है ना। तो फिर आप जाओ, पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी मेड क्लियर। मैं पहले ही बोली हूँ, डिबेट है तो डिबेट का, क्विज कंपटीशन है तो क्विज कंपटीशन, हाउस वाइज है तो हाउस वाइज शुड बी मेंशन देयर। तो इफ हाउस वाइज तो ऑब्वियसली शुड बी कॉन्टैक्ट विद द हाउस लीडर, हाउस कैप्टन। हाँ, हाउस कैप्टन क्या करेगा, नाम आपको देंगे, आप अंदर दोगे। तो ये एक चैनल होता है, जैसे मैं आप लोग को इंग्लिश में बस संस्कृत में पढ़ाती हूँ ना, माइंड मैप, एक चैनल होता है। मैनेजमेंट आपको बोला, आपने नोटिस बोर्ड में लिखा, नोटिस बोर्ड में स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स मतलब आपकी सहपाठी, आप उसको ऐसे करके लिखोगे, जे यू शुड बी कॉन्टैक्ट विथ योर, हाँ, इट क्विज कंपटीशन हाउस वाइज, तो यू शुड बी कॉन्टैक्ट विथ योर हाउस कैप्टन। हाउस कैप्टन के पास वो लोग नाम देगा, उसके साथ आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। हाउस कैप्टन, फिर आप उल्टे जाओ, हाउस कैप्टन आपको देंगे, आप अंदर ले जाओगे। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ द नोटिस, ओके। फिर डिटेल शुड बी गिवन ऑन ऑर्डर और इम्पोर्टेंस। तो ऑर्डर भाई हम ऑर्डर नहीं दे सकते सबको, है ना। आपकी वो सहपाठी है, आप क्लास 10th की बच्चे हो तो यू आर द हेड बॉय, ठीक है, बट 12th स्टैंडर्ड बॉयज हेड बॉय, लेकिन वो आपको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो 10th में आप ही पढ़ते हो, तो दे आर ऑल्सो योर क्लासमेट्स। ऑर्डर आप छोटे को फिर भी दे सकते हो, जी आप लोग अगर पार्टिसिपेट, लेकिन जो क्लासमेट्स दे वांट टू पार्टिसिपेट, आप उसके ऑर्डर नहीं बोल सकते हो, अब रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हो। इफ दे आर विश्ड, हाँ, दे आर विश्ड, देन दे विल बी कॉन्टैक्ट विथ यू। इफ इंटरेस्टेड पर्सन, तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट विथ दिस नंबर बा हेड ऑफ द बॉय, हेड बॉय। डोंट ट्राई टू राइट माई सेल्फ, मेरे साथ कांटेक्ट करो, ये कभी नहीं लिखना, हेड बॉय के साथ कांटेक्ट करो। अगर आप हेड बॉय हो तब भी, आप हेड बॉय हो तब भी आप नहीं लिखना जो कॉन्टैक्ट विथ मी हेड बॉय, ये नहीं लिखना, कॉन्टैक्ट विथ हेड बॉय। अभी ऑल स्टूडेंट्स नो यू आर द हेड बॉय, सबको पता है आप हेड बॉय हो, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेगा, वो लोग आपके साथ ही कॉन्टैक्ट करेगा। तो आप क्या करोगे उसका, आप क्या करोगे उसका, आप हेड बॉय हो इसीलिए वो लोग आपके साथ कांटेक्ट करेगा, तो आप लिखा लीजिए। तो आपको उसमें पर्टिकुलर माई सेल्फ व आई व मी नहीं लिखना। नोटिस में ये सिस्टम कभी नहीं होता है कॉन्टैक्ट विथ मी, नहीं, कॉन्टैक्ट विथ द हेड बॉय। जैसे आपकी सामान खो गया, आप नोटिस बोर्ड में नोटिस दे रहे हो, हैं, उसमें ऐसा नहीं लिखना कॉन्टैक्ट विथ मी, तो आप उसमें क्या लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट विथ दिस क्लास व दिस नंबर, कॉन्टैक्ट विथ दिस नंबर लिख सकते हो, व कॉन्टैक्ट विथ 10th स्टैंडर्ड, कॉन्टैक्ट विथ हेड बॉय, कॉन्टैक्ट विथ हेड गर्ल। तो जो बॉयज़ है उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से पहुंचा है, वो उसकी ड्यूटी में आता है। आई यू वी ये सब नहीं लिखना, ठीक है। जितने हो सके उतना अवॉइड करना। आपको जो इवेंट है वो तो आपको लिख नहीं पड़ेगा। फिर आप जाइए, द लैंग्वेज शुड बी इम्पर्सनल एंड अवॉइड यूजिंग फर्स्ट पर्सन में, आई ऑलरेडी टोल्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये नहीं लिखना है। मेरा सामान खो गया तब भी मैं नहीं लिखूंगी कॉन्टैक्ट विथ मी, मेरे साथ नहीं करना, मैं क्या लिखूंगी, कॉन्टैक्ट विथ द स्कूल ऑफिस, कॉन्टैक्ट विथ द हेड बॉय। अगर आप हेड बॉय हो तो कॉन्टैक्ट विथ मी नहीं लिखोगे, फिर भी मैं मी नहीं लिखोगे। मेरे सामान, अगर आपका सामान खो गया तब भी आपने नहीं लिखोगे कॉन्टैक्ट विथ मी, आप लिखोगे कॉन्टैक्ट विथ हेड बॉय, कॉन्टैक्ट विथ हेड गर्ल बा स्कूल ऑफिस। अगर आपको कुछ सामान मिला है, किसी का जियोमेट्री बॉक्स मिला बा, किसी का मोबाइल मिला बा, कोई कुछ मिल गया, तो आप लिखोगे कॉन्टैक्ट विथ द ऑफिस, क्योंकि जो मोबाइल जिसको भी मिलेगा वो वहीं पर रख देगा। बस स्कूल कैंपस के दरवाजे के गेट के सामने आपको, हाँ, आपको ये मोबाइल मिला है, तो ये बच्चे के नहीं हो, टीचर के भी तो हो सकता है, बाहर वाले के भी हो सकता है, पेरेंट्स का भी हो सकता है। इसीलिए उसमें नोटिस बोर्ड में जब लिखोगे तो लिखोगे कॉन्टैक्ट विथ द स्कूल ऑफिस, ठीक है, स्कूल अथॉरिटी लिखो।
तो बस जो जिसको जो मिला है वो नोटिस पढ़ के वो अपना डिस्क्रिप्शन दे के वो कलेक्ट करे अपना। समझ में आया ना? फिर आप जाओ, इट शुड बी रिटन इन 50 वर्ड्स। मैं पहले ही बोली हूँ ये डिटेल में नहीं जाना है, डोंट गो इन डिटेल। आपको ये डिटेल में नहीं जाना है। आपको ये क्या करना है, आपको ये करना है एकदम सिंपल सा, जितने हो सके उतने शॉर्ट में नोटिस होना चाहिए, जितने ये होगा उतना ही आप लिखोगे। ओके, द नोटिस शुड बी रिटन लार्जली इन फ्यूचर टेंस। तो आप क्या करोगे, हैं आपने क्या लिखा है देखो, द नोटिस इज रिटन इन फ्यूचर टेंस। हाँ, आप उसमें नहीं लिखोगे, लेगाली इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आपका भविष्य काल के लिए सब कुछ लिखना है। नोटिस होगा, ए कुछ कंपटीशन विल बी देयर, इट विल बी हेल्ड ऑन वेयर जाएगा। पहले ही मैं बोली हूँ, टाइम मेंशन, वेन्यू कहाँ होता है, वेयर, व्हेन। तो आपको ये हिसाब से आपको नोटिस लिखनी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट्स टू बी कीप इन योर माइंड। ओके, क्योंकि आप लोग नोटिस लिखते हो, लेटर लिखते हो, लेकिन उसके कोई वैल्यू नहीं होता है। नोटिस लिख दिया, क्या मतलब, क्या मेरा सामान खो गया, आई फॉरगॉट माई पेंसिल इन द क्लास ए, हाँ, कॉन्टैक्ट विथ मी, माई नंबर इज देयर। नहीं, कॉन्टैक्ट विथ द हेड बॉय और कॉन्टैक्ट विथ द स्कूल ऑफिस। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी पूरी नोटिस की वैल्यू मिलेगा। नोटिस जो आपने लिखा है उसकी, आप 10th में जाओगे, 9th में जाओगे, हैं, कोई भी क्लास के बच्चे हो, 10th वाले 11th में जाओगे, 9th वाले 10th में जाओगे, जब आपकी एग्ज़ाम आएगा बोर्ड में, 10th में बोर्ड में एग्ज़ाम आएगा, नोटिस आप लिखोगे। हम लोग बोर्ड में अपने नोटिस जो लिख के लगाते हो वो नोटिस उधर नहीं चलता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बनाने के पहले, जैसे स्कूल बिल्डिंग बनाने के पहले इसका एक प्लानिंग होती है। स्कूल बिल्डिंग जब प्लानिंग करते हैं तो वो जब प्लान करे उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर क्लासरूम होगा, कहाँ पर वॉशरूम होगा, कहाँ पर सीढ़ियाँ होगी। ये एक डिज़ाइनर बनाते हैं, फिर इसके बिल्डर को देते। तो ये जो प्लानिंग, कोई भी चीज़ का एक प्लानिंग होता है। आप बाहर घूमने जा रहे हो, सपोज आपको सुबह 5 बजे निकलना है, तो ऑब्वियसली आपको 3 बजे बाद 4 बजे उठना है, तैयारी होना है, सामान सबसे ठीक से रखा कि नहीं रखा वो देखना है। 5 बजे निकलना है तो उसके पहले बिफोर दैट अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के सब कुछ तैयारी कर लेना है। जाने के टाइम भागा दौड़ में दरवाज़ा बंद करना भूल मत जाते हो, भूल मत जाना। तो ये जो है ये आपको हमेशा याद रखना है। तो कोई भी चीज़ का एक प्लानिंग होता है। अब नोटिस लिखो चाहे लेटर लिखो, तो सब कुछ का एक प्लानिंग होता है। आप बोलोगे मैडम मैंने तो 250 वर्ड्स की जगह में 350 वर्ड्स का ऐसे लिख दिया, लेकिन जो सेंटेंस एक सेंटेंस में हो जा रहा है उसको घिनाने का कोई मतलब ही नहीं है। मेन पॉइंट लिखो, यू हैव टू राइट इन मेन पॉइंट। ऐसे लिख रहे हो तो आज ऐसे कोई एक सपोज आपको ऐसे दिया है तो आप उसको क्या करोगे, घुमाते रहोगे? नो। तो आप हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ करने के पहले हमारा एक प्लानिंग अपना माइंड में रखना है। दैट्स व्हाई बोला जाता है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। अपने दिमाग में कुछ रखो, तब आपको लेटर राइटिंग में भी, नोटिस में भी। इसके पहले दिन मैंने लेटर राइटिंग सिखाई थी। आप बोलोगे मैडम मुझे तो लेटर राइटिंग 4th से आता है, 5th से आता है। नहीं, सब कुछ की एक स्टाइल होता है। अगर आपने पॉइंट सीख जाते हो ना, जैसे आपने मैथ्स में a+b² सीख जाते हो, तो आपने x+y दे चाहे c+d दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने a+b² का फॉर्मूला सीख गया, a²+2ab+b²। तो आप उसमें xy दे चाहे bc दे, मैडम मैंने तो a+b का सीखा था, इसमें तो x+y दिया, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने उसका पॉइंट सीख लिया, आपने उसका फॉर्मूला सीख लिया, एम आई राइट? फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला अगर सीखोगे, नो एनी प्रॉब्लम विल बी फेस इन योर लाइफ। कोई भी सब्जेक्ट सीखो, उसको डिटेल्स तभी पढ़ पाओगे जब उसका आपको फॉर्मूला याद रहेगा। जैसे मैंने आप हमेशा बोलती हूँ, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी, आप लोग ग्रामर सीखो। और स्पेशली यू, जब भी आप लोग इंग्लिश पढ़ने बैठो, कीप विथ यू डिक्शनरी, कीप विथ यू डिक्शनरी, डिक्शनरी लेके बैठो। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द notice writing. That day I explain in the style of letter writing. I hope you understand.
ओके, तो नाउ यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. जब भी आप लिखने जाओगे आपके दिमाग में आ जाएगा. ओके, तो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो एंड कीप इन योर माइंड ऑलवेज. अरे मुझे तो ये नोटिस आता है, नोटिस आता है, लेकिन अगर ये पॉइंट आपको याद रहे तो टीचर शुड बी गिव यू मार्क्स इन प्रॉपर वे. आप लोग बोलते हो ना टीचर हमको मार्क्स नहीं देता है. एक लेटर आपने लिखा है, आपके फ्रेंड ने लिखा है और एक फ्रेंड ने लिखा है, देखो उसमें आपका नंबर ज़्यादा आया. क्यों नंबर ज़्यादा आया? क्योंकि लिखने की स्टाइल और क्लियरली है. और जो बाकी बच्चे लिखा है डिटेल्स में लिखा है. इतना डिटेल्स नहीं चाहिए, इतने डिटेल्स नहीं चाहिए. ऐसे लेटर ऐसे में देखना हमेशा वर्ड्स दिया रहता है 250, 280, 130, 150. तो दैट्स वाई आप विद इन दिस मार्क्स, ये जो मार्क्स दिया हुआ है, आपका जो नंबर दिया हुआ है, आप शुड बी कंप्लीट. ओके, तो नोटिस में भी 6 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो, तो आपके क्लियर होना चाहिए. अगर आप ये क्लियर करोगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, हैव ए नाइस डे. ओके.